welcome to the LexWave YouTube channel. Today we are starting with a series of interviewing law students across the different nations from the different universities and law colleges. We'll try to understand the admission process, environment of the university, facilities provided from them to the law students. Today we have here Mr. Aryan Parmar from National Forensic Sciences University, Delhi campus. So I would like to welcome you, Mr. Aryan. Hope you're doing good. Hello, ma'am. I'm good. Yes, ma'am. Okay, so Aryan, let's start with the series of interview. Yes, ma'am. So I would like you to introduce yourself. I am Aryan Parmar and I am pursuing my BBLLB honors from National Forensic Sciences University, Delhi campus. And currently, I am in my third semester, second year, and I belong from Indore, Madhya Pradesh. Okay, so आर्यन, आपका जो कैंपस है NFSU, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वहाँ पे क्या कैसा कैंपस है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है. So please. Yes, ma'am. So, ma'am, my campus, Delhi campus, is situated in Rohini Sector 3, Delhi, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और एक टैग मिल रखा है एनएफएसयू दिल्ली को, नॉट ओनली दिल्ली, ऑल द एनएफएसयूज, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. और ये टैग आज तक अभी तक किसी एनएलयू को नहीं मिला है. और कैंपस आपको एक सपोर्टिव फैकल्टी मेंबर्स प्रोवाइड करता है. बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जैसे कि seminars from High Court judges and Supreme Court judges, and many internship opportunities. So that's a brief introduction for my NFS University. I guess that's a very good opportunity for the law students to get admission in NFSU Yes. if they want to pursue the law career. So that's good. So Aryan, what was your experience from the last 1 year since you are here in the NFSU and you are in second year right now? So what was your experience from past 1 year studying law at Delhi campus? So मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉ स्कूल एक बहुत अच्छा एक अलग ट्रांजिशन हो जाता है आपकी एक स्कूल लाइफ से. सो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि आपको सब स्पून फीडिंग कराई जाती है, नॉट इन इवन एन एल यूज. सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है. फैकल्टीज आर सपोर्टिव, लाइक वेन एवर यू हैव एनी डाउट अबाउट योर सब्जेक्ट, फैकल्टी ऑलवेज असिस्ट यू. And we have a good law library, separate law library in Delhi campus. So most of the law students spend their time in law library. Okay, that sounds good. Acha Aryan, how did you get the admission in NFSU? From CLAT, or is there any specific entrance exam for the NFSU? No, ma'am, for law department, you have your CLAT marks and ranks are considered for the admission BBLLB honors. And yes, ma'am. Okay, that sounds good. So, what was your strategy and your planning through the during the CLAT? Like you wanted to get admission in the NFSU from day one only. So, what was your planning for that? So मैम, एक स्ट्रेटेजी मतलब दो बहुत फेमस से कोट है. लाइक फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एंड सेकंड इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो कंसिस्टेंसी एक स्टूडेंट, एक हर एस्पिरेंट में होनी चाहिए, और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अगर कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट करता है तो वो ना कि क्लैट की एग्जाम, बाकी सारी एग्जाम्स को वो एक्सेल कर जाएगा. Okay, so मतलब कंसिस्टेंसी अगर हो तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो. दैट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव. सो अब जैसे कि एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो बहुत जगह ऐसा होता है हम मोटिवेट होते हैं, काफ़ी बार डीमोटिवेट होते हैं. सो हाउ डिड यू डेल्ट विद योर मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशंस? इस मैम, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम से में इतने प्रेशर में होते हैं, सबसे ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. सबसे बड़ा वो डीमोटिवेटर उनके मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट ही होता है. वो उसका जो रियल एग्जाम से है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है. मॉक टेस्ट में अगर आप 100 नंबर ला रहे हो, 20 नंबर भी ला रहे हो या फुल भी ला रहे हो, वो आपकी मेन एग्जाम्स के स्कोर को कभी जज नहीं करता है, जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है. तो हमें सबसे पहले तो अपने मॉक टेस्ट में हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए. आपने कहाँ गलती करी, आपने कहाँ इम्प्रूव किया, उस चीज़ को आप नोट करें. एक मॉक डायरी होती है, मॉक एनालिसिस डायरी.
सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो मेंटेन करनी चाहिए कि आपके फर्स्ट मॉक में कितने मार्क्स आए, किस सेक्शन में कितने मार्क्स ला रहे हो आप, और आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, और आप कहाँ टाइम बचाकर कहाँ ज़्यादा अपना इनपुट दे पा रहे हो। तो सबसे पहले आप अपनी एक मॉक डायरी एनालिसिस की मेंटेन करें। फिर मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स भी यही है कि आप मॉक में अच्छे नंबर ला रहे हो, और डीमोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स भी यही है कि आप मॉक में अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो। तो एक आपको गिल्ट नहीं आया अंदर से, तो एक तो आपको मॉक में परफॉर्म अच्छा करना है, प्लस एक मॉक डायरी एनालिसिस की प्रिपेयर करनी है। सो दिस वर द टू प्रैक्टिसेस आई यूज्ड टू डू until my So, preparation. according to you, mock tests are the main thing, the main aspect of preparing for CLAT or any entrance exams. You should appear for the as much as mock tests you can. Yes. Okay, so you have to keep a check on your growth Yes. during the mock test. Okay, that's very good. So, what were the challenges you have faced during your preparation for the CLAT? Is So, there any? सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमें रीडिंग हैबिट नहीं होती है। क्लैट इज़ ऑल अबाउट, क्लैट का जो पेपर होता है इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग स्पीड। तो अगर कोई भी स्टूडेंट होता है तो सब उसकी मिनिमम रीडिंग स्पीड 250 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। जिसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने करी थी और मेरे साथ के जो भी हमारे साथ थे उन्होंने करी थी। रीडिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक स्टॉप वॉच लेके बैठे अपने साथ, और कोई भी पैराग्राफ ले लें 300 वर्ड या 500 वर्ड्स तक का, और आप देखें कि 1 मिनट का टाइमर लगाओ और स्टार्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंड एज वेल। आप 1 मिनट के अंदर कितना रीड करके कितना कॉम्प्रीहेंड करते हो, वो आपका पेपर डिसाइड करता है। हाँ, कोई बट आपके रीडिंग की हैबिट आई गेस ऐसा नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में आ जाए। यू हैव टू गेट कंसिस्टेंट थ्रू इट। मैम रीडिंग की आ सकती है, सबसे पहले आप अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ें, फिर लॉ का जो लॉ मटेरियल्स होता है, फिर जीके, देन मेन सोर्स इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज मस्ट। न्यूज़पेपर आपका रीडिंग प्लस जीके दोनों कवर कर लेता है। दैट्स गुड, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। न्यूज़पेपर्स दैट्स में गुड। मेनली एडिटोरियल्स जहाँ पे ओपिनियन आते हैं ऑथर्स के, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसकी टोन क्या है, उसकी मतलब उसका थॉट क्या है उस पैराग्राफ में। एक पैराग्राफ में वो बताता है कि अगर रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसमें आपको मालूम पड़ता है कि इस ऑथर ने क्या चीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो उससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू मालूम पड़ता है, और उसकी रीडिंग से हमारी रीडिंग हम गो थ्रू होते हैं तो हम वो कंफर्टेबल हो जाते हैं वर्ड्स से। I guess that helps a lot in reading comprehensions which are there in the exams. Okay, that's good. So, ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि हमारे कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो। सो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन के अपने वीक सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के साथ? सो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वैसे लॉ ही था। लीगल रीजनिंग जो 5 सेक्शन होते हैं इसमें, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड क्वांट मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लाइक दैट इज बेसिक मैथ्स। सो Yeah. मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ्स था क्योंकि आई बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटीज़। सो मैथ्स से मेरा लेना देना कुछ था नहीं, तो सबसे मैं कम मैथ्स को ही देता था। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें, नहीं आई गेस 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मेरा वो था पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 5 लाना है, दैट्स इट। उस सेक्शन को वहीं का वहीं रख दो। फिर आता है जीके। जीके आता है कंसिस्टेंसी से। जीके को सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपकी एग्जाम दिसंबर में है तो आप दिसंबर 25 में है, और दिसंबर 24 से दिसंबर 25 तक के जीके को हर मंथली बेसिस पे उसके नोट्स बनाओ कि डे 1 से डे 30 तक पूरे मंथ में क्या न्यूज़ आई है, क्या रेलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। हमें रेलेवेंस और इररिलेवेंट चीज़ों को भी छाँटना आना चाहिए। अगर वो हाँ, नहीं करा तो आप सेग्रीगेट सारी चीज़ें पढ़ करना। लोगे। एक सबसे यस, अच्छा यस। रूल है लीगल रीजनिंग या कोई भी एग्जाम्स में पढ़ने का, 80-20 प्रोपोर्शन में पढ़ना। 20% जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको, उसको आपको 80% पढ़ना है, और जो रेस्ट ऑफ द 80% है उसको आपको 20% पढ़ना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ जाती है जो आपने पढ़ी नहीं है, तो उसमें आप कुछ आंसर नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप एक लॉजिकल रीजनिंग के उससे अपने लॉजिक और कॉमन सेंस से आप आंसर डिराइव कर लोगे। हाँ, so basically you should never leave any box untouched. You हाँ, should मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए उसके बारे में। It's just a reading or anything, but ये नहीं untouched होना चाहिए नहीं कि छोड़ना आपको, चाहिए कोई हाँ, भी। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको हर चीज़ की सारी नॉलेज है, बट सारी चीज़ की कुछ-कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए।
Yes, because something is important than nothing. Yes, ma'am. That's good. So, how was your journey during the marks of CLAT and from the marks of CLAT, from the day of result and from the day of admission at NFSU? सो मैम क्लैट के साथ साथ बहुत सारी एग्जाम्स होती है लॉ स्टूडेंट्स के एक उसमें जब वो एक इस जर्नी के थ्रू जाता है तो एक क्लैट का प्रेपरेशन टाइम होता है जिसमें वो बहुत सारे एग्जाम्स लिखता है क्लैट सबसे मेन होती है तो क्लैट के मार्क्स में देखा जाए तो क्लैट की तैयारी हो जाती है फर्स्ट मॉक्स से तो आप अपने मॉक्स के फर्स्ट मार्क्स देखते हो कि पहला आता है 23 मार्क्स आते हैं 20 मार्क्स आते हैं 120 नंबर में से तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो कि क्या हो गया फिर ऐसे करते करते आप 80 तक आते हो फिर 100 तक आते हो फिर आप क्लैट लिखते हो क्लैट लिखने के 2 हफ्ते में मे बी आ जाता है रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आता है डी डे वाले दिन तो आप खुश हो जाते हो जैसे कि मैं हुआ था फिर मैंने एनएफएसयू में अप्लाई कर दिया था देन इसमें ऊपर से ये होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है देन जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती है तो टॉप में से फिर उनको बाइफर्सिफिकेशन हो जाता है उनका Acha, Aryan, since your university name suggests that it's a National Forensic Sciences University, so matlab, how it is quite different from National Law University? Is there any forensic teaching or anything regarding forensics in the law subjects? सो मैम इसका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अलग है एक बेसिक बीबीएलएलबी बीएलएलबी और बीएससी से जो दूसरे लॉ कॉलेजेस अपने प्रोवाइड करते हैं सो द यूनिक थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज इट्स ब्लेंड ऑफ फॉरेंसिक्स विथ लॉ व्हिच मेक्स यू द मास्टर ऑफ लॉ विद द स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक्स ओके, सो मतलब आपको साथ के साथ फोरेंसिक्स का भी आइडिया देकर के चलते हैं. और मैम Okay, so एक्सपोजर बहुत हाँ एक्सपोजर होता है जैसे कि आप किसी भी लॉ कॉलेज में जाओगे तो आपको सिर्फ लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स आसपास दिखेंगे जो हमारा कॉलेज है वो मेनली फॉरेंसिक्स बीटेक बीबीए एमबीए एंड लॉ के स्टूडेंट को साथ में रखता है जिससे हमारा कनेक्शन एक नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा बन जाता है okay, so मतलब हाँ, lawyers के लिए contact is must. So you have to get in touch with the forensic department. कल को वकील साहब को जरूरत पड़ेगी तो फिर होना चाहिए ना forensic department में. यस मैम So that's good, and I guess that's enough for the day. So I would like you to give some concluding remarks. सो टू ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स मेरी आई एम सॉरी तो मेरा कंक्लूजन यही हो सकता है कि कॉलेज लाइफ एक बहुत लॉ स्कूल में पढ़ना बहुत होता है तो कोई भी इससे मत आना है कि करण जौहर की मूवी देख ली है तो लॉ स्कूल ये होगा वो होगा ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता है तो एक Suits, माइंडसेट I आपका guess, होना चाहिए suit the most here. हाँ सूट्स हाँ अधिकतर लोग सूट्स देख के आते हैं कॉलेज लॉ स्कूल बट आपका सूट्स देख के वेब सीरीज देख के ये माइंड नहीं होना चाहिए कि आपको लॉ करना है आपकी पर्सनालिटी से अगर वो आपकी फील्ड आप जस्टिफाई कर सकते हो तो ये आप लॉ चूज करो वरना फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपनी फील्ड को डेडिकेशन अपना इन्वॉल्वमेंट्स अपना वो होना चाहिए डिवोशन लॉ के प्रति तो वो ही आपको लॉ में बाद में जस्टिफाई करेगा अदरवाइज इट वोंट जस्टिफाई यू Okay, that's good. That was very interesting to know about your journey at NFSU and during your CLAT preparation. So, thank you so much, Mr. Aryan Parmar. I wish you all the very best for your next uh, journey and for the rest of your years of your law studies. So, thank you very much for joining with us. थैंक यू लेक्स वेव